institutes in the field of education. That is Srimati Savitri Devi Charitable Trust, Educational Trust, and Crimson Education. You know, we've generally been asked, what does Crimson stand for? Why did we choose the name Crimson? As we all know, the name Crimson comes from the color crimson, which is very rich. It's a very rich red color. And it signifies passion and it signifies determination. But what does the color have to do with education? So to understand that, we have to first understand what does the Crimson values stand for. For us at Crimson World School, our values stand for C for compassion, R for resilient, I for integrity, M for mindfulness, S for sustainability, O for open-mindedness, N for nurturing. And just as the Crimson is a mix of two colors, you know, it's a mix of red and blue. Similarly for us, a collaboration of all these values which make a difference to our students. It gives us students, these values make our students stand out. They make them a class apart in the crowd. They give them strength to be successful. They give them the values of determination. They give them the values to be leaders. But leaders not just in the classroom, but to be leaders in their community and in the world. In the history, Crimson is known as, you know, we use Crimson as the color blood for our blood. We say Crimson is our blood color. It brings in unity and togetherness. So at Crimson World School also, we instill in our children the sense of togetherness, unity, collaboration, work together. And this is what they take with them when they go out of the school, in their communities at large. You know, in conclusion, I can say Crimson is not just a name, it represents the values that we hold dear. The Crimson is our commitment to providing, you know, quality education to the children in Agra. Okay. You know, we are a brand that is well known in India, and we are now collaborated to bring the same values and the education to the children in Agra. I won't make it very long. Let me introduce to you on our panel today. We have on our panel today our Executive Chairperson of Crimson Education, Mrs. Farzana Dohadwala. We have our CEO, Mr. Hussain Dohadwala. We have our Principal, Mrs. Ranjita. And we have our Operations Head, Mrs. Sarabjit Singh. Unfortunately, Mr. Praveen could not join us today because they had a very unfortunate accident of a family member. So they had to rush, you know, to leave out of the city today. I wish he could have joined us today, but he couldn't. But, you know, thank you all of you for coming here today. We just want you to know what we are all about. And if we can take this, you know, to the city of Agra to let them know that the education in this era is only going to get better with Crimson Education. I would now like to invite Mr. Hussain Dohadwala, if you could please come. वैसे कृपया हिंदी में बताना अच्छा रहेगा भाई साहब। जी जी हाँ प्लीज। नहीं, हिंदी में कन्वे होगा ना हम लोगों के माध्यम से भी। हाँ हाँ, यस। तो सही चीज जाएगी। धन्यवाद। आज बेसिकली जो हमारा मेन एम है क्रिम्सन एजुकेशन और जो श्रीमती सावित्री देवी एजुकेशन ट्रस्ट है, ये जो गठबंधन है उसके बारे में हम कुछ ज्यादा बात करेंगे। क्रिम्सन की कहाँ स्कूल्स है, हमारी क्या वैल्यूज हैं, तो वो एना ने ऑलरेडी बताई है। और आगे चल के हम बच्चों और पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या बदलाव आएंगे स्कूल में, वो हमारा मेन एम है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सो क्रिम्सन एजुकेशन बेसिकली ये जब हमने शुरू की थी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने बहुत सारी दूसरी स्कूल्स के बारे में सुना होगा जिनकी फ्रेंचाइज है, जिनकी अलग अलग स्कूल्स है काफी अलग अलग शहरों में भारत में। क्रिम्सन में एक अलग चीज है कि ये कंपनी स्कूल के टीचर्स ने एक साथ बनाई है। अच्छा, ये कोई कॉर्पोरेट नहीं है जो आके स्कूल एजुकेशन में आ रहे हैं। हाँ। हम सारे ही हमारी सबकी जर्नी, जैसे फरजाना मैम उन्होंने अपनी जर्नी 25 साल पहले शुरू की, एना जिन्होंने ये पूरा मंच खोला ये क्रिम्सन के बारे में बताते हुए, उन्होंने अपनी जर्नी एजुकेशन से शुरू की है। तो हम सारे क्लासरूम में टीचर रह चुके हैं। और अभी हमारा एम है कि हम कैसे एक साथ आके
टीचिंग लर्निंग को और बेटर कर सकते हैं अक्रॉस स्कूल्स इन इंडिया. सो दैट्स द होल आइडिया ऑफ क्रिम्सन एजुकेशन. जो हमारी टीम है, जो कोर टीम है, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं सीबीएसई करिकुलम के, क्योंकि ज्यादा करके जो हमारी क्रिम्सन की स्कूल्स हैं वो सारी सीबीएसई है. हमारे पास कैम्ब्रिज और आईबी करिकुलम के भी स्कूल्स हैं. तो जो कैम्ब्रिज की स्कूल्स है, जो यूके का बोर्ड है, और जो आईबी जो जिनीवा का, ये सारी बोर्ड्स भी हम काम कर चुके हैं. एक दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्रिम्सन के बारे में, कि हमने ना कि सिर्फ स्कूल्स चलाई है, हमने एजुकेशन बोर्ड्स के साथ भी काम किया हुआ है. तो हमारे टीम में लोग हैं जिन्होंने सीबीएसई के साथ काम किया हुआ है, गवर्निंग बोर्ड मेंबर रह चुके हैं. हमारे साथ फरजाना मैम है जिन्होंने आईबी के साथ काम किया हुआ है. तो जो चेंजेस बोर्ड लेके आता है, हमें पहले से वो पता होते हैं, तो हमारी स्कूल्स उसके लिए फ्यूचर रेडी, और बच्चों को हम फ्यूचर रेडी बना सकते हैं. करेंटली हमारी स्कूल्स हम वी आर प्रेजेंट अक्रॉस नॉर्थ. तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में हमारी 3 स्कूल्स है. पहली स्कूल हमारी बनारस में है, वाराणसी में. दूसरी स्कूल उत्तराखंड रुद्रपुर में. तीसरी स्कूल, ये स्कूल आगरा में. तो नॉर्थ इंडिया में हमारी 3 स्कूल्स है. वेस्ट इंडिया में पूना में हमारी 4 स्कूल्स है, और साउथ इंडिया में हैदराबाद में 2 स्कूल्स है. और हैदराबाद की हमारी स्कूल्स जो सबसे पुरानी स्कूल है वो 35 साल पुरानी स्कूल है. तो एक वो लेगेसी भी है. तो हमारी कुछ स्कूल्स नई स्कूल है और कुछ स्कूल्स थोड़ी पुरानी स्कूल्स है. तो ये है क्रिम्सन एज अ स्नैपशॉट. आप देख सकते हैं कि ये जो स्कूल्स है, टोटल जो 8 स्कूल्स है उसमें हमारे 10,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं. 550 से ज्यादा टीचर्स है. और एक हमारी जो स्कूल है, तो ज्यादा करके क्रिम्सन की स्कूल्स है, ये स्कूल जैसी है जो स्कूल चल रही थी, और स्कूल के ट्रस्टीज और मैनेजमेंट ने हमारे साथ कोलैबोरेशन किया. पूना में एक अभी नया ग्रीन फील्ड स्कूल है जहाँ पे सिर्फ एक लैंड है, तो हम उसको डेवलप कर रहे हैं. तो 2 साल बाद वो स्कूल शुरू होगी. तो एज अ ग्रुप हम नॉट ओनली वी आर इन रेगुलर रनिंग स्कूल्स, बट ग्रीन फील्ड जो नई स्कूल्स है हम उसके इसमें भी है. तो ये है हमारी सारी स्कूल्स क्रिम्सन की, स्प्रेड ऑल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. जो पहली स्कूल जो आप देख सकते हैं एकदम ऊपर, वो है क्रिम्सन वर्ल्ड स्कूल रुद्रपुर. ये इसको भी शुरू हुए 10 साल हो गए हैं. क्रिम्सन वर्ल्ड स्कूल बनारस, तो बनारस की जो स्कूल है सीबीएसई स्कूल है, और वहां पे हमारी बोर्डिंग भी है. तो वो एक स्कूल है जहां पे रेसिडेंशियल फैसिलिटी भी हम देते हैं. ये हमारे 2 स्कूल हैं पुणे में. तो पुणे में जो कोल्टे पाटिल बिल्डर्स हैं, जो काफी एक लिस्टेड कंपनी भी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है ये दोनों स्कूल्स के लिए. ये दोनों स्कूल सीबीएसई और कैम्ब्रिज हम पढ़ाते हैं यहाँ पे. ये हमारा फीडर स्कूल है पुणे में, टिक टैक टो, जहाँ छोटे बच्चे आते हैं. और ये हमारे 2 बड़े स्कूल्स हैं हैदराबाद में. तो यहाँ पे ये सारी स्कूल्स में कुल मिला के 10,000 बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं. और ये जो स्कूल है जो हैदराबाद में बोवनपल्ली एरिया में है, ये 9.5 एकड़ का कैंपस हो. हमारे पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा वाला स्कूल यही वाला है. अगले साल हम दूसरा एक, क्योंकि जैसे मैंने बताया शुरू में कि क्रिम्सन शुरू किया था टीचर्स ने, कि एज टीचर्स हम कैसे बदलाव ला सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में. तो जो भी हमारा सरप्लस भी निकलता है ये स्कूल चला के, जो रेवेन्यू आता है, वो गोज बैक इनटू द स्कूल. तो हमने जैसे ये स्कूल जो हमारा है हैदराबाद में, हमने ये स्कूल में सोलर पैनल डाले हैं. हमने मोर देन 40 लाख खर्चा किया है यहाँ पे. तो हमारा ऑल्सो एक एम है, जैसे हम अभी G20 के बारे में बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में हमारे प्रधानमंत्री काफी मंचों पे उन्होंने बात की है. तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी सारी स्कूल्स, हमारा एम है अगले 5 साल में नेट जीरो स्कूल्स हो. तो वी आर नॉट इन एनी विच वे इम्पैक्टिंग द एनवायरमेंट. तो जैसे ये 2 स्कूल्स में किया हुआ है, बाकी जो ऊपर की स्कूल्स है अगले 5 साल में सारी सोलर पे ही चलेगी. हमारी बसेस भी इधर सीएनजी होगी, नहीं तो इलेक्ट्रिक होगी. तो दैट्स द लार्जर विजन, द लार्जर गोल ऑफ कैम्ब्रिज ऑफ क्रिम्सन एजुकेशन. तो एक जो चीज है, एंड ये बात है जो प्रवीण जी बंसल जी बात करने वाले थे, क्योंकि वो आज यहाँ मंच पे नहीं रह सकते, क्योंकि वो जैसे ऐना ने बताया बहुत ही अनफॉर्चुनेट, कि वो बहुत ही कोई करीबी उनका एक्सीडेंट हुआ है बैंगलोर में, तो उनको वहाँ पे एकदम अर्जेंट में जाना पड़ा. ये क्या नीड है? स्कूल तो अच्छी खासी चल रही थी, बच्चे भी आ रहे थे, तो नीड क्या थी? ये स्कूल को, प्रवीण जी को, क्रिम्सन एजुकेशन को आगरा में लाने की. तो एक तो है कि हम कैसे प्रोग्रेसिव बन सकते हैं. आप सभी ने सुना होगा 2020 में
2020 में इतने सालों बाद, मोर देन 30 इयर्स के बाद हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो सीबीएसई उसका स्पीयरहेड कर रही है कि हर स्कूल में वो इम्प्लीमेंट हो, ताकि हम बच्चों को कल के लिए बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा चेंज है, और जो काफी सारी स्कूल्स को दिक्कत आ रही है, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम इफेक्टिवली कैसे इम्प्लीमेंट कर पाए। तो ये एक बड़ा कारण था कि प्रवीण जी देख रहे थे कि हम कहाँ किसके साथ गठबंधन करें, ताकि हमारे स्कूल, हमारी टीचर्स को वो सपोर्ट मिल पाए, ताकि हम एनईपी को उसके विजन से फुलफिल कर पाए। अगर मैं आपसे यहाँ किसी से भी पूछता हूँ कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद आएगी, तो सबका आंसर सेम ही होगा, जो पूरा मॉडर्न वाली गाड़ी है जिसमें ज्यादा फीचर्स हैं, हमें वही गाड़ी चाहिए। मैं अगर मोबाइल की बात करता हूँ, तो पहले ज्यादा करके हम सबके पास ये जैसे काला नोकिया का फोन था, ब्लैकबेरी था, फिर अभी हमारे सबके पास टच फोन है। तो हम सब ने भी कुछ ना कुछ तो अपग्रेड किया ही है हमारी लाइफ में। ये भी हम देखते हैं फोन में बार बार एंड्रॉइड सिस्टम अपडेट होता है, आईओएस अपडेट होता है, और जब भी हमें वो मैसेज आता है हम अपग्रेड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम जब अपग्रेड करेंगे तो बेटर फीचर्स होगी, हमारा फोन और तेजी से काम करेगा, ऐप ज्यादा बेटर खुलेंगे। तो ये बाकी सारे क्षेत्र में ये हो रहा है, पर एजुकेशन एक क्षेत्र है जहां पे प्रोग्रेस बहुत ही धीमी गति से बढ़ रहा है। एंड ये सारे कारण है कि बंसल फैमिली ने क्रिम्सन एजुकेशन के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, ताकि हम एक्सपर्ट्स को ला सके यहाँ के एजुकेशन और टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो कैसे क्रिम्सन काम करता है, क्योंकि जैसे हमारी टीम है, हमारे पास टीम मेंबर है, कुछ बॉम्बे में है, कुछ पुणे में है, मेंबर्स है, सरबजीत यहाँ पे बेस्ड है, कुछ हमारे हैदराबाद में टीम मेंबर्स भी है। एक दूसरी जो यूनिक चीज है क्रिम्सन की, कि बिसाइड्स एकेडमिक एक्सपर्ट्स कि जो टीचिंग लर्निंग वो ट्रेन कर पाए टीचर्स को, हमारे पास अर्बन प्लानर है, हमारे पास आर्किटेक्ट है, हमारे पास 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, क्योंकि हमें वो प्रोफेशनलिज्म लाना है स्कूल को चलाने में। जैसे हम कोई भी कंपनी कैसे चलाते हैं, स्कूल में एक बजट होता है, और एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्कूल में बजटिंग की, क्योंकि ज्यादा करके स्कूल में वो एक्सपर्टीज नहीं रहती। तो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन ऑल दीज काइंड ऑफ डिफरेंट एक्सपर्ट्स एज क्रिम्सन। जैसे मैंने बताया 16 पैनल, अभी हम आगरा के स्कूल में काफी सारे चेंजेस करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो यहाँ के लिए हमने स्पेशल अर्बन प्लानर और आर्किटेक्ट लेके आए, जो हमारी टीम हैदराबाद से, एंड दे आर इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स। जब आप स्कूल आओगे 4 महीने बाद, एक पूरा जो फसाड है, पूरा कैंपस में बहुत सारे चेंजेस देखने मिलेंगे। तो कैसे हम काम करते हैं हर स्कूल के साथ, तो हम, क्योंकि हम सारी जगह पे अलग अलग जगह से हम आते हैं, हम एक गवर्निंग बोर्ड करके एक टीम बनाते हैं। तो गवर्निंग बोर्ड बेसिकली क्या है, ये टीम है जो प्रिंसिपल के साथ स्कूल में, स्कूल के सारे डिफरेंट क्षेत्र में देखते हैं कि हम कैसे प्रोग्रेस कर पाए। एक तो सबसे जरूरी जो स्कूल में है कि बच्चा पढ़ कैसे रहा है और क्या पढ़ रहा है। दूसरा है कि फैसिलिटीज क्या है, हम क्या बेटर दे सकते हैं बच्चों को। तीसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सेफ है इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को चोट वगैरह। तो फोर्थ है स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स में हम क्या ऑफर कर सकते हैं। तो ये जो हमने बनाई है, एक थिंक टैंक जैसे बनाई है, कि ये 6 लोग रहेंगे जो काम करेंगे प्रिंसिपल के साथ स्कूल को आगे ले जाने में। ये टीम में कुछ लोग रहेंगे क्रिम्सन से, कुछ लोग रहेंगे बंसल फैमिली, और कुछ लोग रहेंगे स्कूल से। तो जैसे प्रवीण जी बंसल हमारे चेयरमैन है, वो कंटिन्यू लीड करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्निंग बॉडी। फिर है फरजाना मैम। सो फरजाना मैम, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आईबी एजुकेशन जो है, आपने कुछ लोगों ने सुना होगा, इंटरनेशनल बैकलॉरियन, जो काफी सारी स्कूल है, जैसे बम्बई में धीरूभाई अंबानी, गुड़गांव में पाथवे स्कूल है, श्री राम की स्कूल है, देहरादून में भी काफी सारी स्कूल है। ये सारी स्कूल जिन्होंने आईबी किया है, ये है जिन्होंने आईबी को भारत 18 साल पहले ये लेके आए थे। 18 साल पहले इंडिया में एक ही आईबी का इंटरनेशनल स्कूल था। 18 सालों में आज 150 से ज्यादा स्कूल्स हैं जो आईबी का करिकुलम कर रहे हैं। तो और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें उन्होंने काफी सारा ये आईबी और कैम्ब्रिज के बोर्ड से लिया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो इंटरनेशनल बाहर के बोर्ड है, यहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही बच्चों के लिए फ्रेंडली है। वो एकदम स्टूडेंट को ध्यान में रख के पढ़ाए जाते हैं। वहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट्स कंपलसरी नहीं है, होमवर्क का इतना प्रेशर नहीं होता, काफी सारी चीजें होती है। तो इसलिए फरजाना मैम
हमारी सारी स्कूल्स के लिए वो जो इंटरनेशनल बैकलॉरेट का उनका एक्सपीरियंस है वो हमारे लिए वो लेके आते हैं। अगले है स्पर्श बंसल। सो स्पर्श स्कूल से लास्ट 10 साल से जुड़े हुए हैं प्रवीण जी के बेटे, और इतने सालों से वो ही स्कूल का देखरेख संभाल रहे थे, क्योंकि वो आगरा का मार्केट बहुत अच्छी तरह समझते हैं, पेरेंट के एस्पिरेशन को समझते हैं कि जब माँ बाप हमारे स्कूल में अपने बच्चे को डालता है क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है माँ बाप। फिर जसमीत छाबरा। सो जसमीत एड्यू इंफ्रा में वन ऑफ द टॉप लीडर्स है इंडिया में। तो जैसे मैंने बताया कि एड्यू इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है कि हम कैसे बच्चों को एक एनवायरनमेंट दे सके जहाँ पे टीचिंग लर्निंग वन ऑफ द बेस्ट हो सके कंट्री में। फिर है कीर्ति शर्मा। कीर्ति भी एक दूसरी एड्यू इंफ्रा एक्सपर्ट है। वापस उनका एक्सपर्टीज इज ऑपरेशनल जो प्रोसेसेस है, फाइनेंशियल प्रोसेसेस, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, वो सारा उनका। तो ऑपरेशनली ये है जो सारी स्कूल्स के साथ काम करती है। मेरा बैकग्राउंड मैंने शुरू की थी एजुकेशन सेक्टर, मैंने बिजनेस पढ़ाना शुरू किया था 11वीं 12वीं क्लास में 17 साल पहले। अलग अलग स्कूल्स में काम किया है मैंने, कुछ स्कूल आउट ऑफ इंडिया, एक स्कूल था यूरोप में, जो एक इंडियन कंपनी ने यूरोप में एक स्कूल टेक ओवर किया था, तो एक साल के लिए मैंने वो प्रोजेक्ट पे भी काम किया था। एंड मेरा बेसिक फॉर्टे और एक्सपर्टीज बड़े बच्चों के साथ है 6 to 12। और दूसरा एक जो चीज मैं करता हूँ इस करियर काउंसलिंग में, कि काफी सारे हमारे बच्चे हैं जिनको 12वीं के बाद आगरा के बाहर जाना है, कुछ दिल्ली जाना है, बंबई जाना है, पूना जाना है, नहीं तो इंडिया के बाहर जाना है। अभी काफी सारे बच्चे इंडिया के बाहर भी 12वीं के बाद जा रहे हैं, पर उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती सही तरीके से कि हम कहाँ जाए, क्या क्या खर्चा कितना है, स्कॉलरशिप्स क्या है, हमें क्या चाहिए, 11वीं 12वीं में हम क्या करें ताकि हमको बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन मिल सके। तो हमारी सारी स्कूल्स में हम ये काउंसलिंग इसको बोलते हैं, करियर काउंसलिंग, तो ये हम प्रोग्राम चलाते हैं। लास्ट है मिस रंजीता। सो मिस रंजीता हमारी प्रिंसिपल ये स्कूल में 6 साल से रह चुकी है। एज अ गवर्निंग बॉडी शी विल ऑल्सो प्ले अ की रोल कि जो भी हमें बदलाव लाने हैं एट अ स्कूल लेवल, शी इज द वन ड्राइविंग ऑल ऑफ दिस। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, हम जो भी स्कूल क्रिम्सन एजुकेशन चलाती है हम वहाँ पे एक गवर्निंग बोर्ड बनाते हैं, और वो गवर्निंग बॉडी टीचर, प्रिंसिपल और फाइनली पेरेंट्स के साथ मिलजुल के देखते हैं कि हम वो बच्चों का एजुकेशन स्टैंडर्ड कैसे अपलिफ्ट कर पाए। सो एना, बैक टू यू। सो थोड़ी देर में फरजाना मैम कुछ बात करेगी, फिर मैं कुछ बात करूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और क्या क्या चेंजेस आप देख सकते हैं क्या बारे में। बिल्डिंग। मेरा नाम फरजाना है और मैं क्रिम्सन एजुकेशन में एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हूँ। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो लोग हमें आज पूछ रहे हैं कि क्या फ़र्क है बिटवीन योर स्कूल एंड द अदर स्कूल्स इन बिटवीन आर स्कूल एंड अदर स्कूल्स, के दूसरे हमारा क्या यूएसपी है, हम क्या अलग करते हैं। एक मेन बात है कि हम बच्चे को फ्यूचर रेडी करेंगे। अभी तक आपने पढ़ाई, मैंने पढ़ाई की है, तो हर पढ़ाई में हम बाय रोट लर्न करते हैं। टीचर पढ़ाती है, हम पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में हम पेपर लिखते हैं। हमें चाहिए कि हम एक्सपीरियंशियल एजुकेशन बच्चे को दें, हम उसको नई टेक्नोलॉजी से पढ़ाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक VR लैब्स है हमारा, 3D प्रिंटर है हमारे पास। हम बच्चे को नई तरीके से पढ़ाना चाहते हैं जिससे उसकी क्यूरियोसिटी बढ़े, और वो टेक्स्ट बुक तो है पर टेक्स्ट बुक से वो रियल लाइफ में आवे। सो इट इज़ अ कनेक्ट बिटवीन थियोरी एंड द रियल लाइफ। दूसरी बात है कि ये फ्यूचर रेडी चीज़ है कि हम कंटेंट के पीछे नहीं भागते हैं। कंटेंट तो बच्चे आज भी, अभी तो चैट GPT आ गया है, हम कुछ भी क्वेश्चन डालते हैं वो हमको बड़े आंसर देते हैं। व्हाट वी वांट इज हमारे बच्चे के पास वो स्किल होनी चाहिए, तो हम उसको इतना स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन देंगे जिसमें बच्चे स्किल से वो हर चीज़ कर पाएंगे। तो वो स्किल होगा, वेदर दे बिकम चेंज एम्बेसडर्स। हमारा एनुअल शो है, पूरा परिवर्तन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तीसरी बात है कि हम हमारे बच्चे को UN सस्टेनेबल गोल्स के बारे में बात करते हैं, और उसमें क्या बात कर रहे हैं, हमें सिखाना है कि हम ये पूरा दुनिया में हम कैसे एज स्टूडेंट्स हम कैसे चेंज और परिवर्तन ला सकते हैं।
और एक बात है कि हम हमारे बच्चे को वी आर मेकिंग देम वेरी कम्युनिटी इनिशिएटिव्स हम करते हैं उनके साथ। फॉर एग्जांपल कि हम हमारे बच्चे को सिखाते हैं कि भाई फॉर लाइक जॉय ऑफ गिविंग वीक जब होता है, दान उत्सव जो बोलते हैं, वो जो गांधी जयंती के पीरियड में होता है, हमारे बच्चे बहुत चीज़ें करते हैं जो उसको सीखना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, हमारे एक और स्कूल में उसने क्या किया कि बच्चे लोग और माँ बाप ने डोनेशन किया और स्टेशनरी किया टॉयलेटरीज़ का, और उसको हम पैकेज करके हम जो ज़रूरतमंद थे, जो बच्चे थे, हमारे स्कूल की दीदियाँ थी, सबके साथ हमने शेयर किया। तो ये बच्चे को हम सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि वो बच्चे ये सब चीज़ में आगे बढ़े। दूसरा, रीडिंग भी होती है। इट इज़ नॉट ऑल अबाउट rote learning, it's all about learning to do which are the pillars of the UN mandate. बच्चों को संस्कारित करने की ओर ध्यान आपका है या नहीं? या बहुत ही है। बच्चे को हम कल्चर और ट्रेडिशंस में बहुत है। हम हमेशा बोलते हैं कि इंडियन ईथॉस इम्पोर्टेंट है। हम बच्चे को हर चीज़, लाइक फॉर एग्जांपल हम संस्कृत भी पढ़ाते हैं, उसके साथ हम उसको फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाते हैं, स्पेनिश पढ़ाते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमें हमारा बच्चे को, हमारे रूट्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक छोटा सा एग्जांपल देना है मुझे गुरु शिष्य परंपरा का। हम हमारे बच्चे को वो सिखाते हैं कि यू हैव टू लर्न बाय डूइंग, और वो ही गुरु शिष्य परंपरा था। हाउ डिड अर्जुन लर्न? वो बो एंड एरो ही लर्न, वो स्किल था, उसने सीखा। उस तरह हम हमारे बच्चे को भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग देते हैं जिससे वो सीखे और वो एक इम्बेड नॉलेज हो। ठीक है। तो आपका विद्यालय क्या बहुत हायर इनकम ग्रुप के लिए है? नहीं, हाँ। हमारा एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम एक्सपेंसिव स्कूल चला। हाँ। हम मीडियम फैमिलीज के बच्चे चाहिए, क्योंकि वो ही हमारे फ्यूचर है। हाँ। वो ही बच्चे हमारे देश की उन्नति में बहुत बड़ा भाग लेंगे। लाइक जो हम अभी जो CEO वर्ल्ड वाइड है, वो सिंपल फैमिलीज से आए थे। तो हमें भी चाहिए ये बच्चे को हम वैसा परिवर्तन दे रहे, वैसा शिक्षा दे रहे जिससे ये बच्चे और बढ़े। और इसीलिए हमारी फीस स्ट्रक्चर भी क्वाइट रीजनेबल है। ऐसा नहीं है कि बंसल फैमिली और हमारी जो ये जॉइंट वेंचर हुआ है तो कुछ फीस बढ़ने वाली है। नहीं, फीस हमारी रीजनेबल है, CBSE है, पॉकेट फ्रेंडली है। लेकिन हम बच्चे को बहुत, लाइक 3D प्रिंटर इज़ अ यूनिक थिंग। आई डोंट नो 3D प्रिंटिंग आगरा में कोई और स्कूल्स कराता है। हम वो लोग को VR कराने वाले हैं कि जैसे साइंस सीखते हैं तो थियोरी तो बुक में पढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे बच्चे वो एक्चुअल विजुअली देख के वो लोग सीखेंगे। यानी मेन है कि वो कॉन्सेप्ट समझ जाए। ठीक। स्कूल आगरा के प्रिंसिपल हूँ। आई हैव बीन हेडिंग दिस स्कूल सिंस लास्ट 6 years। आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि शहर में बहुत नामी गिरामी स्कूल हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे अलग क्यों हैं और हम बेहतर बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगी कि हम बेहतर बनने की प्रक्रिया में बहुत आगे निकल चुके हैं। जब हम शिक्षा नीति की बात करते हैं कि NEP 2020 आया, वी आर द फर्स्ट स्कूल इन आगरा टू इम्प्लीमेंट दिस। तो हम इसलिए अलग हैं, हम ये इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। हम बात करते हैं SDGs की, मैम ने बोला, तो हम फर्स्ट स्कूल इन आगरा हैं जिन्होंने ISA अवार्ड लिया था और हम इसको अपने करिकुलम में इम्प्लीमेंट करते हैं। आपने फ़ी के बारे में बात की कि हमारा स्कूल अफोर्डेबल है कि नहीं है, तो इस साल आपको पता होगा कि 11 से 12% तक फ़ी हाइक की बात हो रही है। सारे न्यूज़पेपर्स की हेडिंग थी, हमने इसको आधे से भी कम रखा है, हमने फ़ी हाइक नहीं की है, क्योंकि हम इस अच्छी शिक्षा को इस शहर में लेके आए हैं अफोर्डेबल प्राइस पे। हम चाहते हैं कि जिस शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए इस शहर के बच्चों को दिल्ली NCR जाना पड़ता है, वो हम यहीं पे प्रोवाइड कर सकें। यही नहीं, हमारा स्कूल जो है वो पहला स्कूल है एंड द ओनली स्कूल इन आगरा हो सकता है कैम्ब्रिज इंग्लिश असेसमेंट के लिए। तो और ये वो असेसमेंट है जो आगे जाके सब लोग करते हैं, फिर IELTS के लिए प्रिपेयर करते हैं फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। तो उसके लिए हम लोग स्कूल में ही बच्चे को तैयार कर रहे हैं। तो जैसे मैम ने कहा, हम फ्यूचर रेडी कर रहे हैं। सब अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के बच्चे 49, 75, 32, 35 नहीं बता पाते हैं, तो आपकी हिंदी भी पढ़ाई जाती है, नहीं पढ़ाती ठीक से? बिल्कुल। और जब हम शिक्षा नीति की बात करते हैं तो वो मदर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ हर लैंग्वेज पढ़ाई जाती है और तवज्जो दी जाती है। ओके, थैंक यू। ऐड करता हूँ, तो जब हम टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं
तो एक है कि हम बच्चों को कैसा एक एक्सपीरियंस दे पाए ताकि वो कॉन्सेप्ट समझ पाए, एक टीचिंग विद अंडरस्टैंडिंग, ताकि बच्चा ऐसा नहीं कि कल परीक्षा हुई परसों बच्चा भूल गया, और इतने सालों से जो होता आया है यही है। तो हमें चाहिए कि अगर बच्चा आज कुछ सीखा है वो कल वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके, क्योंकि हमें क्या हमारे देश को चाहिए, जब हम शार्क टैंक जैसे शोज देखते हैं जहाँ पे एंटरप्रेन्योर अलग अलग टाइप की आइडियाज लेके आते हैं, हमें वही चाहिए बच्चे जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। प्रॉब्लम सॉल्व वही कर पाएंगे जाके मैं कुछ कॉन्सेप्ट को समझ के वो अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे फरजाना मैम ने वर्चुअल रियलिटी की बात की, हमारा पहला स्कूल है जहाँ पे हम तीसरी कक्षा से लेके 8वीं कक्षा तक वर्चुअल रियलिटी से मैथ्स और साइंस के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे। दूसरी है कैम्ब्रिज इंग्लिश। अभी ये नहीं है कि हम सीबीएसई से हट के कैम्ब्रिज कर रहे हैं, हम सीबीएसई की स्कूल है, पर एक जो बहुत ही अहम एस्पिरेशन है पेरेंट्स का आगरा में कि मेरा बच्चा इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंटली और बहुत ही अच्छी तरीके से बोले। इसके लिए हमने बाहर से एक टीचर को लेके आए जो बेंगलोर से है, और बॉम्बे से एक इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ हर महीने उनकी एक विजिट होती है जहाँ पे वो इवेल्युएट करते हैं कि वो हम कोर्स कैसे करा रहे हैं, और ये हमारे बच्चे अलग अलग लेवल्स देते हैं। तो जो बच्चा अभी तीसरी कक्षा में है, जब तक वो 10वीं कक्षा में पहुंचेगा, जो यूके में इंग्लिश के लेवल्स है वो सारी लेवल्स वो यहाँ पे आगरा में ही बैठे बैठे कर पाएगा, और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस उनको नहीं देनी है। उनको सिर्फ एक बुक खरीदनी है। बुक का मैं आपको अगर कॉस्ट भी बताऊं तो 250 रुपए की बुक है। एनसीईआरटी की भी बुक लेते हैं तो उतने की तो आती है। सो फीस स्ट्रक्चर जो रंजीता मैम ने बताया, हमारा एक चीज जो बहुत ही ये था कि हम जब कोई भी मार्केट में क्रिम्सन आता है कि हमें फीस बिल्कुल रीजनेबल रखनी है। यूपी गवर्नमेंट का ऑर्डर ये था 5% प्लस द इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो हमने पर फिर भी जानबूझ के सिर्फ हमारा फी इंक्रीज 5% ही किया हुआ है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये जो नए तरीके से हम पढ़ा रहे हैं उसका एडवांटेज मिल पाए। अच्छा भी हमारे पास आते ही बच्चे हैं। अच्छा, कितने % मतलब फीसद बच्चे लेते हैं? तो 25 जो रूल के हिसाब से तो 25 बच्चे हैं, पर वो है कि इतने बच्चे आने चाहिए हमारे पास। वैसे फीस स्ट्रक्चर क्या रखा है? एक 6 साल करीब चलाया माउंट लिटरा जी ब्रांड है, उससे मोह भंग क्यों हो गया आपका? मोह भंग वाली बात नहीं है। हाँ। वो तो था, इसीलिए हमने माउंट लिटरा जी स्कूल आगरा में इतने सालों तक चलाया था। जी जी। और 6 नहीं उससे भी ज़्यादा सालों तक हमने माउंट लिटरा जी स्कूल चलाया है। हाँ। और पूरी शिद्दत से चलाया है, पूरी प्लानिंग के हिसाब से। और आपने स्कूल अगर देखा होगा तो पूरे प्रेम से स्कूल भी बनाया है। हाँ। बस ये कि जी के अंदर कुछ मैनेजमेंट की कमी थी, जिसकी वजह से हमें जो ऐप चीज़ें चाहिए थी और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे थे एजुकेशन के अंदर, हाँ। जैसे कि अभी NEP पॉलिसी आई या उस तरीके से और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजिकली मतलब अपग्रेड होनी चाहिए थी, जो कि अपग्रेड नहीं हो पा रही थी ड्यू टू वॉट एवर रीजन्स जो कंपनी में थे। और यही रीज़न थे जिनकी वजह से हमें पीछे 2 साल से काफ़ी दिक्कतों का थोड़ा सामना भी करना पड़ा, लेकिन देन ऑल्सो वी अवॉइडेड कि नहीं हम चलते हैं साथ में। बट जब वो क्रिम्सन का हमने पूरा मॉडल समझा और जो इनकी सोच है और जो नई नई तकनीकों से ये बच्चों को पढ़ाते हैं और नई एडवांसमेंट्स की तरफ वो हमेशा ध्यान देते हैं, तो हमें ऐसा लगा कि ये चीज़ें आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी। और यही हमारा मेन रीज़न था। जब हम मिले, हमें भी कम से कम शायद 8-9 महीने लग गए एक बार सब सेटल डाउन करने में, क्योंकि ये क्या है ना, ये मैरिज जैसा है ना, तो दोनों पार्टी को एक साथ, क्योंकि हमें साथ में ही काम करना है। यह क्रिम्सन की शासी निकाय बोर्ड ऑफ गवर्नर में आने का आपको लालच लिया है इसमें? अब वो लालच हमें इनके लिए लाया है या इनको हमारे लिए ले आया वो मैं कह नहीं सकता। लेकिन ऑब्वियसली जैसे इन्होंने बताया मैरिज है, मतलब वो तो आपसी संबंध है। और हर चीज़ के लिए देखिए बेसिकली क्या है कि आगरा में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम दुनिया में देखते हैं जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करती हैं आगरा में, जो हमें लानी ज़रूरी है। और आने वाले टाइम में नए तरीके के बोर्ड्स हैं जैसे कैम्ब्रिज से एफिलिएशन और ये सब, ये अभी आगरा में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैरिज में आशा करता हूँ तलाक नहीं होगा। इसी आशा से सारी शादियाँ होती हैं। ये सब बहुत धन्यवाद।